When magnesium loss electron, अगर Mg2 पॉजिटिव स्टेबल है और क्लोरीन नेगेटिव भी स्टेबल है और यहाँ पे एक और क्लोरीन नेगेटिव है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो फिर क्या जरूरत है आयनिक बॉन्ड बनाने की? Name the noble gas which form more compounds. और उसके बाद मैंने बताया था कि Xc is the only noble gas which form more compounds. और इसके बाद हमने ये भी बताया था कि noble gas है क्या? Noble gas are derived from different words. For example, if we take the example of neon, neon means new. In the same way, if we take the example of helium, helium means helos, helos means sun. Now today we will discuss next important topic, and name of the topic is ionic bond. Ionic bond. Now what is ionic bond? Ionic bond is also called as electrovalent bond. Ionic bond is also known as electrovalent bond, or it is also called as polar bond. Electrovalent bond or polar bond. Ionic bond is also called as electrovalent bond. अब सवाल है कि सर ये ionic bond है क्या? If we take the example of ionic bond, for example, if we take the example of MgCl2, magnesium chloride. Next, if we take the example of NaCl, and if we take the example of LiCl, in these compounds ionic bond is formed. चाहे वो NaCl हो, MgCl2 हो, या LiCl हो, या AlCl3 हो, याद रखो ये वो कंपाउंड्स है which contain ionic bond, which contain ionic bond. आगे बताऊंगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के बारे में. It also show covalent character, Fajan's rule. आगे बताऊंगा there is no any bond which is 100% ionic, and there is no any bond which is 100% covalent. But ionic bond have covalent character and covalent bond have ionic character. मान लो आपसे पूछा गया कि ionic bond है क्या? First we will take the example of NaCl, MgCl2, LiCl2, AlCl3. Remember one thing, these all are ionic compounds. Ionic compounds. Copy these things. These are all ionic compounds. कुंसाटी ऑप्शंस में डायरेक्ट which of the following is ionic compound? तो ionic compound is NaCl, MgCl2, LiCl and AlCl3. अब सवाल है सर कि ये ionic bond क्यों और आयोनिक बॉन्ड है क्या? और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. और इलेक्ट्रोवैलेंट मींस व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. और रियल में क्या आयोनिक बॉन्ड है? क्या आयोनिक बॉन्ड रियल में एग्जिस्ट? इज आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट और नॉट? व्हाई वी यूज द टर्म देन आयोनिक बॉन्ड? ओपी टेंडन के अंदर लिखा है in reality ionic bond is not true bond. It is not true, but it is simply an attraction between the two species, between the two charged species. Simple attraction is called ionic bond. रियल में ये कोई बॉन्ड ही नहीं है, वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे लेटर. अब सवाल है NaCl भी है, MgCl2 भी है, LiCl भी है, AlCl3 भी है. These all are ionic compounds. These are all ionic compounds. Now if we take the example of MgCl2, MgCl2. Now remember one thing, if we take the example of element, and element contain electrons. बताओ एलिमेंट के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर? टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज इनर इलेक्ट्रॉन्स और इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. And second type of electrons are called outermost electrons. There are two main types of electron. Number first innermost electron, number second outermost electron. ये जो innermost electron और outermost electron जो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं in terms of dots. In terms of dots. When we represent outermost electron in terms of dots or cross, this is also called a dot structure. इसका नाम क्या पड़ा है? Dot structure. और it is also called a Lewis dot structure. सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था LEWS, इसने ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? Lewis dot structure और dot structure.
और याद रखो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो, only the outermost electron participate in bonding. Only the outermost electron participate in bonding. और जो innermost electron है, they do not participate in bonding. They do not participate in bonding. They only act as shield. आगे पढ़ा होगा shielding effect. अब सवाल है कि ये जो outermost electron है, these are the electron which are responsible for bonding. और bonding के लिए responsible क्या है? outermost electron. इसलिए ये जो outermost electron है, outermost electrons are represented by dots. Outermost electrons are represented by dots. अब सवाल है कि if we take the example of magnesium, बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12. और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8. और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, these 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. These 2 represent valence electron. Very good, concentrate. These 2 represent, and according to dot structure, the valence electrons are always represented by dots. Always represented by or cross. या आप क्रॉस यूज कर सकते हो या डॉट. अब सवाल है कि मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. And that means we use here 2 cross or 2 dots. 2 cross or 2 dots. These 2 cross represent outermost electron. Outermost electron. इसके बाद आगे देखो. Now second one is Cl2. First एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है? 17. बताओ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. मान लो यहां पे भी एक क्लोरीन है और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसके बाद MgCl2 ही क्यों? वो भी आप जानते हो हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला. हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला. मान लो यहां पे भी एक क्लोरीन है और इसके बाद जरा मुझे बताओ क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. 1 2 3 4 5 6 7. Here I use dot and here I use cross. That is your choice. You can also use here dot and cross. But in order to differentiate the electrons of magnesium from chlorine, magnesium and chlorine, we use here cross and also in this case we use dot in order to differentiate. अब सवाल है, बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. और रूल जानते हो, ऑक्टेट रूल. We stated is that the element must have 8 electron in its outermost shell. अब बताओ जरा मुझे क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की. शाबाश. और इस क्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन. इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, शायद आप लोगों ने नहीं जाना होगा. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम और क्लोरीन भी. अब मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और जो ही मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या मैं यहां पे यूज कर सकता हूं टर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मैग्नीशियम इनटू Cl क्लोरीन. अब मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया. सर लॉस क्यों किया? इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? क्लोरीन. और अब ये भी जानते हो द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. गलत पढ़ते हैं 100%. इतना ही हमने याद रखा है कि सर मेटल मीन्स द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. The element which have a tendency to. जरा मुझे बताओ मेटल जो है ना, मेटल ठीक है, metals are those element which have a tendency to lose electron. लेकिन remember one thing, metal cannot lose electron until non-metal is present. So that means metals are those element which have a tendency to lose electron only in presence of non-metal. In presence of non-metal. Without non-metal, metal cannot lose electron. Are you getting my point? Without non-metal, electron cannot lose. Metal cannot lose electron. मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया. द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल, दैट एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और इसके बाद द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. और बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? क्लोरीन. और ये भी जानते हो द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट एलिमेंट इज मेटल. एंड एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बताओ इसका नाम क्या पड़ा है? नॉन मेटल. अब मुझे यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं. सर
मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लॉस की? in order to achieve the electronic configuration of noble gas. First MCQ, गोल्ड MCQ था जो ध्यान, when magnesium lost 2 electron, it achieved the electronic configuration of which noble gas? ऑप्शन में है हीलियम, ऑप्शन में है नियॉन, ऑप्शन में है आर्गन और ऑप्शन में है क्रिप्टॉन. फर्स्ट, when magnesium lost 2 electron, it achieved the electronic configuration of that noble gas whose atomic number is 10. Whose atomic number is? और आप लोग जानते हो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10. अब यहां से पता चला कि सर मैग्नीशियम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. मान लो ये भी आपसे पूछा गया, which of the noble gas achieve the electronic configuration? Which of the noble gas represented the electronic configuration of Mg2 positive neon? Getting my point? मान लो इस तरह भी पूछा, which of the noble gas achieve the electronic configuration of Mg2 positive? बताओ noble gas है क्या? Neon. मान लो आपसे ये भी पूछा गया, when magnesium lost 2 electron, magnesium achieved the electronic configuration of noble gas which is derived from Greek word which means new. Which noble gas that represent? Neon. ये भी वही है, ये भी concepts are different. Concepts are, getting my point? Are you ready? Are you ready? इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के, तो किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव की? नियॉन की. फर्स्ट. सेकंड, मान लो मैग्नीशियम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जो ही मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के, यू रिप्रेजेंट हियर Mg2 पॉजिटिव. Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव. और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मान लो यहां पे Cl नेगेटिव है ना, और Cl नेगेटिव, और यहां पे भी Cl नेगेटिव है. गेटिंग और नॉट? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन. और ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल. मान लो आप लोगों ने पूछा सर जरा मुझे बताओ, ठीक है मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के, और इसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ? Mg2 पॉजिटिव. सर क्या Mg2 पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है? Mg2 पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल. 2,8. और सर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बॉन्डिंग एवरी एटम वांट टू बिकम नोबल गैस. एवरी वांट टू बिकम नोबल गैस. व्हेन मैग्नीशियम लॉस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ. मान लो ये भी पूछा गया, इन केस ऑफ मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, क्लोरीन अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हिच नोबल गैस? आर्गन. वेरी गुड. 18, एटॉमिक नंबर 18. नेक्स्ट वन, when chlorine gained 2 electron, it achieved the electronic configuration of noble gas which is derived from Greek word which means lazy, which means name the noble gas. That noble gas is argon. अब आगे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसलिए कंसंट्रेट करो. मान लो मैग्नीशियम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम कन्वर्ट इनटू Mg2 पॉजिटिव, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव. जरा मुझे बताओ ये Cl नेगेटिव स्टेबल है और Mg2 पॉजिटिव स्टेबल है? सर अगर Mg2 पॉजिटिव स्टेबल है और क्लोरीन नेगेटिव भी स्टेबल है, और यहां पे एक और क्लोरीन नेगेटिव है, सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो फिर क्या जरूरत है आयनिक बॉन्ड बनाने की? वेरी गुड. जरा मुझे बताओ, फिर तो जरूरत ही नहीं है ना आयनिक बॉन्ड बनने की. अगर मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के, तो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी की? अरे वो तो नोबल गैस बना ना. और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो भी तो नोबल गैस में कन्वर्ट हुआ. अगर ये भी नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है, और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना बॉन्ड बनाने की, क्योंकि बॉन्डिंग का मेन कंसेप्ट क्या है? Atoms combine in order to achieve the electronic configuration of noble gas. मान लो कि they already achieve the noble gas configuration, अब जरूरत ही नहीं है बॉन्डिंग बनाने की. Sir, then why ionic bond is formed? This is because metal loss electron only in gaseous state, only in one state. In gaseous state metal loss electron, rectification, NaCl. सर any loss electron, क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन. अरे NaCl तो सॉलिड है ना, और सॉलिड स्टेट के अंदर एलिमेंट नेवर फॉर्म बॉन्ड. आगे बताऊंगा क्यों. क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड इन गैसेस स्टेट, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन सॉलिड, और विदाउट आयोनाइजेशन एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, डज नॉट. अब सवाल है कि मान लो, अरे गाड़ी में पॉइंट आना,
व्हेन मैग्नीशियम लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू Mg2 पॉजिटिव। सर ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल, तो फिर क्यों जरूरत है उनको बॉन्ड बनाने की? दिस इज बिकॉज Mg and Cl they exist in gaseous state. In what state? Gaseous state. और gaseous state में आप लोग जानते हो, gaseous state में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, they are move randomly, they are move in all the direction and due to be stability increase and decrease. गैस की मैं बात कर रहा हूं. In case of solid, liquid and gas, which state is more stable? सॉलिड, और इसके बाद लिक्विड, और इसके बाद मान लो गैस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना Mg and Cl, बट दे आर मूव रैंडमली, दे आर मूव, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस स्टेट में होती है? गैस. ऑप्शन में पूछा गया आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्लेस इन विच स्टेट? गैसियस स्टेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नंबर सेकंड, गैसियस स्टेट में एट आयन स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल. अरे सर वो तो अनस्टेबल हो रहे, शायद आप लोगों ने नाम तो सुना होगा प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा, अरे प्लाज्मा स्टेट है क्या? इट इज द आयोनाइज्ड गैस. आयोनाइज्ड, अगर आयोनाइज्ड गैस है, स्टेबल है, अनस्टेबल? अनस्टेबल. और इन द सेम वे when magnesium lost to electron it convert into gaseous state, when chlorine gain electron it convert into gaseous state. As a result, when they collide, when force of attraction develop between Mg and Cl2, they convert into solid state. They convert into, यही वजह है कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. गटी में पढ़ा नॉट वो इम करना आख इलेक्ट्रॉन लॉस इम करे गेन, युथी इम गेन इनका लॉस के इलेक्ट्रॉन इम किमसन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो नियॉन, और इम किमसन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में बने ना स्टेबल. अगर हम स्टेबल बने सर तेल क्या बने आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड इसलिए बने हम दोनों का स्टेटस में आसान गैसेस में ज्यादा हम स्टेबल, इसलिए ये उमन दरमियानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट हम कत मत गसन कन्वर्ट सॉलिड्स में, और सॉलिड्स में क्या आसान स्टेबल. तवई छुते था याद कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. नंबर सेकंड पॉइंट, since when Mg lost to electron it convert into Mg positive plus Cl negative, it resulting the formation of charged species. अरे Mg2 पॉजिटिव है ना, और Cl भी चार्ज स्पीस है, यही वजह है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मीन्स विच इज रिलेटेड विद आयॉन्स, विच इज रिलेटेड विद चार्जेस, विच इज रिलेटेड विद, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं फिजिक्स वाला का मैक्सिमम पॉइंट्स यहां पे. दैट इज कि दो इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन, व्हेन मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू Mg2 पॉजिटिव एंड Cl गेन इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू Cl2 नेगेटिव. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, मान लो किसी ने पूछा, अब सवाल है कि मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो किस में कन्वर्ट हुआ, और Cl किस में कन्वर्ट हुआ? नाउ इन दिस केस इट इज Mg पॉजिटिव, इट इज Cl नेगेटिव. अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. Whenever there are charges, force are present, that force is called electrostatic. The electrostatic force of attraction which is present between metal and non-metal. The electrostatic force of attraction which is present between electropositive element and electronegative element, that electrostatic force of attraction is called ionic bond. अब आगे देखो, ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड केमिस्ट्री में हम बॉन्ड हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन. बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन. बट in case of NaCl or MgCl we always use this is NaCl, this is MgCl2. क्या कहीं पे आप लोगों ने बुक में देखा Na इसके बाद यहाँ पे डैश और इसके बाद Cl? तो नहीं है ना, इसीलिए किताबों के अंदर लिखा है आयोनिक बॉन्ड इज नॉट ट्रू बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड इज नॉट, और यहां पे ये भी लिखा है कि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट. और ओपी टेंडन पे लिखा है कि आयोनिक बॉन्ड इज नॉट ट्रू बॉन्ड, इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन आयॉन्स, प्रेजेंट बिटवीन. क्योंकि केमिस्ट्री में एक कहावत है और केमिस्ट्री का एक रूल भी है, बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, एंड देयर इज नो लाइन इन आयोनिक बॉन्ड. इसलिए आयोनिक बॉन्ड रियल में कोई बॉन्ड ही नहीं है, बल्कि सिंपल एक अट्रैक्शन है, सिंपल एक. अब यहां से भी पता चला ना कि अट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि अट्रैक्शन के रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. अरे अट्रैक्शन किसी से भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी.
बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि देयर मस्ट बी लाइन, देयर मस्ट बी रिलेशन, देन द बॉन्ड फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। देयर इज नो रिलेशन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? इसलिए वो सिर्फ अट्रैक्शन होती है। एक नंबर फर्स्ट इज बॉन्ड एंड नंबर सेकंड इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन एंड बॉन्ड आर डिफरेंट, अट्रैक्शन एंड बॉन्ड आर इवन कि अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग भी है जरूरी नहीं है कि दैट मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और अट्रैक्शन वीक भी हो सकती है इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ, जानते हो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है या आयनिक बॉन्ड? आयनिक। लेकिन रियल में बॉन्ड कोवलेंट है या आयनिक? तो दिस इज ऑल नोन एज NaCl। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट टाइम शायद किसी ने बोला भी था सर, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज सीजियम फ्लोराइड, CsF2, CsF2 नहीं CsF, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। और सीजियम जो है ना, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जो फ्लोरीन है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सीजियम फ्लोराइड, नेक्स्ट वन इज सीजियम, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम, गेटिंग? और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो सीजियम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सीजियम and most electropositive element is cesium and belongs to group number first. In the same way जो fluorine है ना, fluorine is most electronegative element. Now in this way simple, what is ionic bond, why it is called as ionic bond, why it is called electrovalent bond, getting my point, and why it is called polar bond also. Polar means which have two ends. Number first is plus and number second is minus. Now the important, अब एडवांस लेवल से स्टार्ट होगी, इसलिए पूरा आप कंसंट्रेट करना। यहां तक तो आप जानते हो आयनिक बॉन्ड है क्या। Now what are the conditions necessary for the formation of ionic bonds? और नंबर सेकंड, बिफोर वी डिस्कस कंडीशंस, एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT में, मे बी यू कैन डू दिस थिंग। क्वेश्चन था इफ ionic compound is very good। तो ऑप्शन फर्स्ट था XY, ऑप्शन सेकंड वाज YX, ऑप्शन थर्ड वाज Y नेगेटिव X पॉजिटिव, ऑप्शन फोर्थ वाज नन ऑफ अबव। शाबाश। इफ X electropositive element lost one electron and Y gain electron, they result from univalent। univalent जानते हो, मान लो एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन ने गेन किया तो दैट रिजल्ट इन फॉर्म NaCl। और इसके बाद ये भी जानते हो फर्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके बाद बताओ लेवल क्या थी, क्लास 9 कल मैं लाऊंगा बुक साथ में, IIT 35 years solved question, IIT JEE 35 years solved। condition for the formation of AIEEE, condition for the formation of ionic bond, what are the conditions necessary for the formation of ionic bond? Which of the following condition is necessary for the formation of ionic bond? Which of the following condition necessary for the formation of ionic bond? Always याद रखना, there should be low value of ionization energy। ionization energy का वैल्यू क्या होना चाहिए? लो। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होना चाहिए हाई। क्या होना चाहिए? हाई। और इसके बाद जो क्रिस्टल एनर्जी है, क्रिस्टल एनर्जी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई। फिर जाके आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले याद रखो,
आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होना चाहिए ज्यादा, नो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, और जो क्रिस्टल एनर्जी है, क्रिस्टल एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए। इफ क्रिस्टल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टुगेदर बिकम मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, वरना बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, आगे बताऊंगा, जिनमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन ही नहीं होती, और मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, और कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 3 टाइम्स मेटल भी है, नॉन। बैरियम सल्फेट एग्जांपल हमारे पास है, बैरियम सल्फेट BaSO4, बैरियम सल्फेट BaSO4, बैरियम सल्फेट है ना। बताओ ये बैरियम है क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बैरियम तो मेटल है, और SO4 भी क्या है, नॉन मेटल। सल्फर तो नॉन मेटल, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आयोनिक, लेकिन आयोनिक नहीं होती है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। पढ़ाऊंगा आगे, बहुत सारे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब आगे देखो, बताओ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या जरूरी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, मेटल के लिए। तो देयर शुड बी लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर मेटल्स। और सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स, बिकॉज नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और देयर शुड बी हाई वैल्यू ऑफ, और देयर शुड बी हाई वैल्यू ऑफ क्रिस्टल एनर्जी। ये पूछा गया था AIEEE 2012 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो देयर शुड बी लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, एंड हाई क्रिस्टल एनर्जी। डिटेल में पढ़ाऊंगा वन बाय वन। नाउ अंडरलाइन फर्स्ट कंडीशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट वी विल डेफिनेशन डज नॉट मैटर इन नीट, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डेफिनेशन डज नॉट मैटर। डेफिनेशन सिंपल इन ऑर्डर टू बिल्ड कंसेप्ट। डेफिनेशन का सवाल यवन, लेकिन इस डेफिनेशन अंदर कन तम मो सवाल। और ये नीटस में प्रॉब्लम, अगर ते एप्पल नहीं हो ना, एप्पलस सारी खुद निब्रिम लेयर इस रेड और सारी कथ लाइक कर लाइक आउटर मोस्टर पार्ट ना कर, लेकिन इस नॉलेज प्रोटीन या बाकी तम का प्रेजेंट इनसाइड। यही है नीट के लेवल। आप लोग देखते हो सरफेस लेवल पर, लेकिन नीटस में सरफेस लेवल पर सवाल यानी डेफिनेशन पर सवाल अंदर कन क्या चोटिस तथ में सवाल इंटरनल स्ट्रक्चर। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी पे पूछा जाएगा, लेकिन वहां पे डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग। आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया या चोटा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन सर, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, गॉड पॉइंट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अमाउंट ऑफ, राइट डाउन, अमाउंट ऑफ एनर्जी amount of energy which is required to remove the outermost electrons from an isolated gaseous atom, और ion भी term use कर सकते, is known as ionization energy. Ionization energy means metals are those elements which have a tendency to lose electron. लेकिन अब सवाल है कि ठीक है, मेटल ने तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने खातिर क्या जरूरत, एनर्जी। विदाउट एनर्जी मेटल कैन नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अक्सर तुम याद मेटल कहते हैं इलेक्ट्रॉन दिया ना, कैच द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव द इनवर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अरे ठीक है, इनवर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करन, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेबर करने खातिर क्या जरूरत है, एनर्जी। विदाउट एनर्जी इवन की जो फिजिबल प्रोसेस होती है वो भी नहीं होती, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आर यू गेट माय पॉइंट? एनर्जी इज ड्राइविंग फोर्स, एनर्जी इज ड्राइविंग फोर्स। अब सवाल है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम, और कंडीशन भी है आइसोलेट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंट के लिए डिफाइन है, न कि कंपाउंड के लिए।
कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन कंपाउंड की फॉर्मेशन जो होती है ना, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? एक एलिमेंट के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट, नॉट फॉर कंपाउंड। मतलब मैंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ NaCl, कहीं पे नहीं देखोगे, कहीं पे डाटा नहीं होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ NaCl। NaCl की कोई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? NaCl की मैं बात, वो कंपाउंड है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर वन एलिमेंट। और सेकंड कंडीशन क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर विच स्टेट? गैसियस स्टेट। और थर्ड पॉइंट, ये आइसोलेट होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। There should not be in combined form. Combined form में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को नहीं डिफाइन करते। तो आगे लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड, आयोनाइजेशन एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। मान लो नीट में पूछा गया, इफ एलिमेंट, इफ सोडियम, फॉर राइट डाउन जस्ट लाइक दिस, ionization energy for sodium is 22.1 kilojoule per mole in liquid state। in liquid state आप ऑप्शन हो जीते, in liquid state देख कर बता सकते हो ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड इन लिक्विड स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट? देयर मस्ट बी गैस, देयर मस्ट बी गैस। मान लो अगर आइसोलेटेड टर्म भी नहीं हो तो गैस, देयर मस्ट बी गैस स्टेट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए हम डिफाइन करते हैं? गैस। ये तो आप जानते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकंड पॉइंट याद रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक इन नेचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन दिस। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक इन नेचर। और आगे लिखो MTR, मुझे तो रटो, एंडोथर्मिक इन नेचर। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक। मान लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर एलिमेंट, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। एंड सोडियम मस्ट बी प्रेजेंट इन व्हिच स्टेट? गैसियस स्टेट। नाउ इसके बाद वी अप्लाई एनर्जी टू सोडियम, and if we remove only one electron, if only one electron removed from an isolated gas atom, then it is called first ionization energy। इसका नाम क्या पड़ा? फर्स्ट आयोनाइजेशन। अब जरा देखो, नीट की लेवल एडवांस बताने जा रहा हूं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड एनर्जी फॉर मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा। Amount of energy which is required to remove the electron from isolated gaseous atom is known as ionization energy। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ? Na पॉजिटिव में। और इलेक्ट्रॉन 2,8 और प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज याद रखना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, whenever you use the term endothermic, we always use plus sign on reactant side, on reactant side। मान लो ये सोडियम है ना, सोडियम, और इसके बाद सोडियम को हमने क्या अप्लाई की? एनर्जी। बताओ इस एनर्जी का नाम क्या पड़ा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए हमेशा आप देखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। यहां पे डायरेक्ट टर्म होगी एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके बाद किसकी फॉर्मेशन हुई? Na पॉजिटिव 2,8 प्लस। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, then it is exothermic। Then it is exothermic reactions are those reactions in which the energy of product is less than reactants। Endothermic reactions are those reactions in which the energy of reactant is more than products। ये तो एडवांस डेफिनेशन है। अभी बताओगे वही बचपन वाली बातें, सर पता है यहाँ पर नाचन, पता है बानन गिनन, और आज बट यह लेवल पेट, इसलिए तभी डेफिनेशन थोड़ा मत समझ। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या फर्क है? एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है एक्सोथर्मिक के केस में, और एंडोथर्मिक के केस में रिवर्स होता है। इसलिए मैंने यहां पे टर्म क्या यूज की? एंडोथर्मिक के केस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है इसके पास एनर्जी कम होती है। ओवरऑल मुझे बताना है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। पर उसी का नाम क्या पड़ा है? आयोनाइजेशन। वहीं कस इलेक्ट्रॉन कर में ये तो लॉस आ, इसलिए आपके प्रोना फर्स्ट आयोनाइजेशन। बूझ तो वन नियर टू पॉइंट पूरा थे जब कंसेप्ट। मान लो आपसे पूछा गया सोडियम Na 2,8,1, अगर भी ये पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कर अप्लाई, बताइए किस में कन्वर्ट होगा? Na पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8। इसके बाद सेकंड,
if we supply more energy to it, if we supply more energy to it, मान लीजिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसके बाद it lost second electron. सर टे एरियाज ऑफ अ टर्म, हाउ इट इज पॉसिबल? अरे पॉसिबल कुछ भी है, अरे पॉसिबल कुछ भी है। यही वजह है कि अच्छे सरफेस पर कंसेप्ट पढ़। सर अभी तो आपने कहा मेटल आर दो विच हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दे आर 10 इलेक्ट्रॉनिक, ऑलरेडी सोडियम ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव की बाय सोडियम लॉस एनर्जी इलेक्ट्रॉन। मैं कहता हूं कि आप लोगों के हाथ में वाटर, जरा मुझे बताओ वाटर कितन का बॉयल 100 डिग्री पर, हर कोई जानता है वाटर बॉयल 100 डिग्री, लेकिन जरा मुझे बता NaCl पहले ऐड करो, इसके बाद बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का। अरे बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? अरे इंक्रीज हुआ ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? लेकिन अभी आप डिफाइन कर वाटर है बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए मैं कह रहा हूं गलत मत पढ़ाओ। मेटल्स आर दोज व्हिच हैव अ टेंडेंसी, अक्सर हम अच्छी पढ़ा अक्सर ये पढ़ ए मेटल के तीन एलिमेंट हम गुड कंडक्टर छ हम गुड कंडक्टर। जरा मुझे बता आयरन मेटल है या नॉन मेटल? किसने कहा ये मेटल है? कुल हाथ बुरहान को, मगर अब सच हो दो दलील। अगर तो आयरन करो ना इम्प्योरिटीज एड, आयरन बिकम सेमीकंडक्टर, आयरन क्या बने? और इफ यू अप्लाई 415 एटमॉस्फेयर टू कार्बन इट बिकम मेटल। 450 एटमॉस्फेयर अगर तो मेटल का अप्लाई क्या बने? आप लोग जानते हो कार्बन तो मेटल है, नॉन मेटल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कार्बन नॉन मेटल है, आयरन मेटल है, ओनली स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन चेंज नेचर चेंज, कंडीशन चेंज। बड़ा बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100, लेकिन कंडीशन चेंज हुई NaCl, तो बताओ नेचर भी चेंज हुआ ना, अब जाके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी 100। ओवरऑल मुझे बताना है कि सोडियम है ना, सोडियम फर्स्ट मान लो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इफ वी सप्लाई मोर एनर्जी टू सोडियम इट लॉस्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Na2+। ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं, वो अलग बात है। इसके बाद मान लो कि फर्दर हमने एनर्जी यहां पे सप्लाई की, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, बताओ किस में कन्वर्ट होगा? Na3+, 2,6।